I hope my screen is visible and I am audible to all of you. Yes, sir. So, is there any problem? If you face any problem, you can just tell me. आवाज सबको क्लियर है? कहीं भी ब्रेकेज आवाज में क्रैकिंग हो रही हो, नेटवर्क इशू, एनीवन? No, sir. ओके, सो टुडेज एक्सपेरिमेंट इज ओम्स लॉ और इसमें हमें क्या करना है, तो वी हैव till now studied about resistance, so we will see how this Ohm's law is applicable to resistance and some non-linear devices like diode. Okay, so let's start. So as per the objectives, these are the objectives which are listed in my page. Explain first, the student would be able to explain Ohm's law, explain Ohm's law for resistance in series, explain Ohm's law for resistance in parallel, explain non-ohmic device, measure and confirm Ohm's law. तो हमें ये 5 experiments perform करने हैं. First, I will explain Ohm's law. Then हमारे पास experiment perform करने के लिए एक resistance in series का एक structure होगा, उस पर हम apply करेंगे Ohm's law. After that, we will go for resistance in parallel circuit. Then non-ohmic device. Non-ohmic device means the component or device which doesn't follow Ohm's law. ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपका डायोड आता है. तो ऑन दी डायोड we will apply this Ohm's law and see how this device works. Okay, measure and confirm Ohm's law after that. So these are our objectives of today's experiment. उसके बाद हमारे पास एक प्रोसीजर का कॉलम है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू पेस्ट दी sites website, so just check your chat box. I'm pasting the link. Okay, so now उसके बाद हमें प्रोसीजर डिस्कस करेंगे. आई विल डिस्कस द प्रोसीजर. फिर हम सिमुलेशन पे जाएंगे. We will perform some experiments based on these applications like series and parallel series, resistance in series and resistance in parallel. After that, in the last, we will do a quiz or assignment. आप home assignment रखना because the answer is already given, so you can verify, or if you face any problem, then you can ask me in our next class. Okay, so let's just start. Still some people are joining. So as you all know, Ohm's law क्या होता है? Ohm's law is the relation between V and I. Okay, so V equals to IR एक application है Ohm's law का. जो actual Ohm's law होता है वो आपका current density और conductivity और electric field के बीच में relation होता है. That is J equals to sigma A. वहाँ से आप ये proper फिर आपका फॉर्मूला डिराइव करते हो V equals to IR. So वो फॉर्मूला आप अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ोगे in your upcoming semesters. So the Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. Such a conductor is characterized by its resistance R measured in ohms. So जो आपका करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ. अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया गया? V इज प्रोपोर्शनल टू I.
और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पर हमारे पास R कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, V इक्वल्स टू IR आएगा. Now V is in voltage in volts across the conductor. I is the current in amperes through the conductor. Okay, so V is directly proportional to current, that is V equals to IR, or you can define resistance R, which is inversely proportional to current, so that is I equals to V by R. अब लास्ट क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने यही रिलेशन पूछा था कि V और I के बीच में रिलेशन क्या होता है एज पर ओम्स लॉ. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्टली चूज द ऑप्शन, बट कुछ स्टूडेंट्स ने गलत ऑप्शंस यूज किए थे. ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपका ये भी था, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट प्लस रेजिस्टेंस. सो समटाइम्स अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए ये दिस ओम्स लॉ ट्रायंगल बहुत ही हेल्पफुल है. वो कैसे है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो इन दिस ट्रायंगल 3 पोर्शन हैज बीन गिवन. एक है अपर पार्ट आपका वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और लेफ्ट सेक्शन आपका I एंड राइट सेक्शन इज R. सो these symbols have their usual meaning. V represents voltage, I is current and R is resistance. So suppose हमें V का रिलेशन निकालना है in terms of I and R. तो जो vertical line क्रॉस कर रहा है that represents multiplication. ठीक है, so that represents multiplication between these two quantities. So V equals to हो जाएगा I into R. Now horizontal line represents division. ठीक है, तो कभी भी आपको R निकालना है तो R क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइडेड है, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और I निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन R. तो दिस ओम्स लॉ ट्रायंगल इज वेरी हेल्पफुल टू रिमेंबर द पर्टिकुलर फॉर्मूला. बस आपको पोजीशन याद रखना है और यू हैव टू क्रिएट अ T पार्टीशन बिटवीन द ट्रायंगल. तो आपको एक T टाइप करना है, बस T से पार्टीशन करना है inside the triangle, and you have to fill the positions with the respective parameters. So V, I and R ऐसे प्लेस करना है. हॉरिजॉन्टल आपका डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा और वर्टिकल आपका मल्टीप्लिकेशन. So V equals to IR, I equals to V by R and R equals to V upon I. ठीक है. Now इस पर्टिकुलर ओम्स लॉ पे एक वीडियो भी है. I am sharing the link also, and just let me share this link. इसको मैं प्ले कर रहा हूँ. Ohm's law. Let's see the demonstration of Ohm's law. Ohm's law states that at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor, and it is expressed as I directly proportional to V, which is mathematically written as I is equal to V divided by R, where R is the constant and is called the resistance of the conductor. The most basic quantities of electricity are voltage, current, and resistance. Ohm's law shows a simple relation between these three quantities. An electric current is the flow of electric charge. Electric charge flows when there is voltage present across a conductor. Current is measured in amps. The electrical force or pressure that causes current to flow in a circuit. Voltage is measured in volts. The electrical resistance of an electrical conductor is the opposition to the passage of an electric current through that conductor.
resistance is measured in ohms. Conductor or wire. The current is flowing through a wire. The voltage is the forces that cause current to flow in the wire. Assume the resistance is present in the conductor. The voltage forces the current to flow in the wire and resistance is opposing the flow of current. So I have also shared the link of the video in our chat box, so you can check from there also. Now this note is regarding the above Ohm's law triangle, which I explained. From the above figure, the equation may be represented by a triangle known as Ohm's law triangle, where V is placed on the top section, the current I is placed on to the left section, and resistance R is placed to the right. The line that divides the left and right sections indicates multiplication, and the divider between the top and bottom sections indicates division. Okay. Now explanation of Ohm's law. तो कभी भी हमें Ohm's law का explanation देना है तो उसके लिए हमने ये circuit use किया. This is a simple circuit of a resistance and voltage source. अब कभी भी हमें करंट अगर मेजर करना है तो करंट को आपको क्या करना होगा, सीरीज में लगाना होगा किसी भी इक्विपमेंट के. तो ये आपका जो कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में हमने एक अमीटर को लगाया फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट. और वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको कंपोनेंट के पैरेलल में लगाना होगा वोल्टमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टमीटर हमने पुट किया अक्रॉस रेजिस्टेंस R1. तो हमें क्या करना है, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, जो कि कांस्टेंट होगा रेजिस्टेंस R1. ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, पूरे एक्सपेरिमेंट में अपने परफॉर्म करना है. सो वी विल मेजर करंट and voltage, and after measurement of these two quantities you have to plot between V and I. The resultant should be linear. तो जो इनके बीच में ग्राफ आएगा that should be linear. So y equals to mx एक लाइन होगी, इसमें m आपका r रिप्रेजेंट करेगा. तो स्लोप अगर आपकी कांस्टेंट है तो एक लीनियर कर्व शो करना चाहिए. So from the circuit, the voltage across resistor is equal to source voltage equals. ठीक है, तो वोल्टेज अगर हम इसमें देखें तो और कोई कंपोनेंट तो है नहीं इस पूरे सर्किट में. एक वोल्टेज ये है और एक आपका रेजिस्टेंस है कंपोनेंट. तो जितना वोल्टेज ये प्रोवाइड करेगा सोर्स, उतना सारा का सारा इसके अक्रॉस अप्लाई होगा. क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? अभी तक किसी को डाउट कहीं पे? नो सर. ओके, किसी को भी कहीं भी डाउट हो अभी तक तो पूछ सकता है अभी, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. सो कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं है. ठीक है, तो इस कंपोनेंट का हम रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं. अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है, दैट मींस जितना वोल्टेज ये अप्लाई किया है उतना वोल्टेज आपका इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, और वही वोल्टेज आपका वोल्टमीटर के थ्रू आप मेजर करोगे. ठीक है, तो VR इक्वल्स टू VS. VR मींस वोल्टेज अक्रॉस
रेजिस्टेंस एंड Vs इज सप्लाइड वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज आपका Vs है. So the current through the resistance is given by I. अब R के थ्रू हमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सो वोल्टेज आपका क्या है, VR है, और रेजिस्टेंस आपका R है. नाउ हमारे पास एक सीरीज सर्किट है, ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए हमने एक सीरीज सर्किट पे अप्लाई किया. सीरीज सर्किट मींस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है. सीरीज सर्किट्स आर समटाइम्स कॉल्ड करंट कपल्ड और डेजी चैन कपल्ड. ये एक नाम है जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को बोलते हैं. द करंट इन अ सीरीज सर्किट goes through every component in the circuit. Therefore all of the components in a series connection carry the same current. There is only one path in a series circuit in which the current can flow. So इस किसी भी सर्किट में अगर केवल एक ही पाथ हो करंट को फ्लो करने के लिए, then we can say all the components are connected in series combination. ठीक है, जब एक ही पाथ हो करंट को फ्लो करने के लिए और कोई दूसरा पाथ ना हो, दूसरा लूप ना हो, तो वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होंगे दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. सो उस केस में all the currents through any equipment is same. जितने भी करंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट है. रेजिस्टेंसेस मस्ट बी एडेड. ठीक है, सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, सिंपल एडिशन. सो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सिंपली एडेड. नेक्स्ट वोल्टेज. वोल्टेज जब हमारा करंट सेम है तो उस केस में वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है. तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसके अक्रॉस जितना वोल्टेज आ रहा है उस सबका समेशन आपका सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा. तो इस सर्किट में अगर हम इस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई करें तो क्या होगा, Vs एज पर KVL जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल समेशन ऑफ वोल्टेज इनसाइड दिस लूप मस्ट बी 0. मतलब टोटल समेशन जो होना चाहिए इसके लूप के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं अक्रॉस वोल्टेज, तो उनका समेशन मस्ट बी 0 होना चाहिए. तो ये Vs उसके अकॉर्डिंग ये Vs जो होगा वो इन दोनों इक्विपमेंट के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसके बराबर होगा. ठीक है, तो Vs इक्वल्स टू VR1 प्लस VR2. ये आप KVL से फाइंड आउट कर लोगे. सो फ्रॉम द सर्किट, इस सर्किट में अगर देखें हम तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. द टोटल करंट ऑफ द सर्किट IT is Vs upon R equivalent. So टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल सप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, सो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस R. अब हमें वोल्टेज अगर किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अक्रॉस निकालना है तो क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जितना करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू. ठीक है, नाउ वैसे ही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर देखें तो क्या होगा, वोल्टेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस. तो करंट तो इस पूरे सर्किट में सेम है, दैट इज IT. ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाइड बाय IT. सो इन अ सीरीज सर्किट द करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स is the same and the voltage across the circuit is the sum of the voltage across each resistor. तो सीरीज सर्किट में क्या हमने पाया कि करंट मस्ट बी सेम फॉर अ पर्टिकुलर सर्किट, क्योंकि सीरीज सर्किट है, बट वोल्टेज जो होगा वो सप्लाई वोल्टेज के सम के सप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा अक्रॉस ऑल द इक्विपमेंट्स. तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज है उसका समेशन सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा. नाउ
रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में अगर हम देखें तो पैरेलल कंपोनेंट्स में क्या होता है, तो जब पैरेलल में हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली पैरेलल में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वोल्टेज सप्लाई इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट। तो जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा। सो V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 अगर तीन कंपोनेंट्स अलॉन्ग विथ सप्लाई वोल्टेज प्रेजेंट है एक सर्किट में। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये है, अगर तीन रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है तो 1 by R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Now here current is the total summation of all the currents which is divided between the components. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में सप्लाई वोल्टेज इज Vs और ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो एज पर द स्टेटमेंट जो टोटल सप्लाइड वोल्टेज है दैट मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट आपका R1 है, ये R2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसका एक एंड और दूसरा एंड दोनों एंड एक दूसरे में शॉर्टेड है। और किससे शॉर्टेड है? सप्लाइड वोल्टेज से। ठीक है, यहाँ पे भी हम मान के चल रहे हैं कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। ठीक है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वही यहाँ पे वोल्टेज होगा। सो इस रिगार्ड में हमने पैरेलल बताया। पैरेलल में ऑब्वियसली जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे कुछ फ्लो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आपका इस साइड है, लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड से मूव करेगा, दैट मीन्स की क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ करंट। तो क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो यहाँ पे जब तक आपका इस सर्किट में है, ठीक है, जहां पे कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है, तब तक तो करंट का डिवीजन नहीं हुआ है। जैसे ही R1 कंपोनेंट आएगा तो सम अमाउंट ऑफ करंट डिवाइड होगा, R1 में फ्लो होगा और कुछ आपका R2 में फ्लो होगा। ठीक है, तो टोटल करंट मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2। तो R1 और R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके समेशन के इक्वल आपका टोटल करंट होगा। So from the above circuit, R equivalent is R1 R2 divided by R1 plus R2 क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और टोटल करंट आपका टोटल सप्लाइड वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो फिर अब हमें वोल्टेज तो पता है, बट करंट की वैल्यू क्या होगी उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू? तो करंट कैन बी मेजर्ड बाय Vs अपॉन सप्लाई वोल्टेज अपॉन R1। ठीक है, जो भी सप्लाई वोल्टेज है इसके अक्रॉस डिवाइड बाय R1, तो वो करंट वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही R2 के थ्रू करंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय R2। तो यू कैन इजीली मेजर ऑल द पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज और करंट इन देयर रेस्पेक्टिव सर्किट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ओमिक कंपोनेंट की बात तो कर ली, अब हमारे पास नॉन ओमिक कंपोनेंट है, मींस जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। सो अ नॉन ओमिक डिवाइस इज अ डिवाइस दैट डजंट ओबे ओम्स लॉ, दैट इज द रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो अभी तक रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो बट चेंजेस इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट। सो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा। So the device is said to be non-ohmic. In this case, V versus I graph is not a straight line, but has some curvy shape. Such devices do not have a constant value of resistance, and the resistance is called dynamic resistance. So such type of resistance जिसमें resistance की value constant नहीं होती, वहां पे हम resistance को बोलते हैं dynamic resistance, because it is constantly changing. So डायनेमिक है, वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस। सो एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस आर टंगस्टन फिलामेंट, डायोड, थर्मिस्टर एटसेट्रा। सो ऐसा कुछ आपका सर्किट होगा। इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स अप्लाइड है, एक रेजिस्टेंस है और एक डायोड है। ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इस डिवाइस को नॉन लीनियर प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मेजर करना है। तो उसके लिए हमने एक अमीटर लगाया और इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगाया। So Ohm's law is a very useful law, but it only applies to devices that behaves like resistors. That is, I is simply proportional to V. तो Ohm's law केवल लीनियर डिवाइसेस पे ही अप्लाइड होता है, जहां पे I और V के बीच में जो रिलेशन है वो कांस्टेंट होता है। So Ohm's law describes one possible relationship between V and I in a component, but there are others like capacitor, diodes, and thermistors. I proportional to rate of change of V. I flows in one direction only, and thermistor temperature depends on resistor. So ये particular components की property है। यहाँ तक किसी को थ्योरी में कहीं भी डाउट है, then you can ask anyone. अभी तक सब कुछ समझ में आ गया? Sir, please share that link. I have already shared the link in your chat box. Please Okay, check sir. the chat box. Okay. Also, Sahitya has shared the same link. Okay, so I think you all have no doubt. So we will move to our next section, which is procedure. So procedure क्या होगा? So हमारे पास तीन तरह के अरेंजमेंट हैं। फर्स्ट इज सीरीज कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सक्यूज मी सर। पहला होगा, यस यस प्लीज। सर एक बार आप फिगर 5 फिर से रिपीट कर देंगे, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। फिगर 5 मींस यस सर, द लास्ट वन। नॉन सी आपका जो ये डायोड है, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में जब पीएन जंक्शन स्टार्ट होगा। डायोड क्या होता है कि इट ओनली अलाउस करंट थ्रू ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है? तो वन डायरेक्शन फ्लो ही अलाउ करता है ये। दैट्स व्हाई वी से दिस डायोड डजंट मींस फॉलो द ओम्स लॉ। और दूसरा तरीका ये है इसका मेजर करने का, अगर आप इसका आईवी के बीच में रिलेशन, इफ यू सी इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो एक्सपोनेंशियल का होता है। बट हियर आई कैन नॉट से, मतलब यहाँ पे तो आपको कैसे बता पाएंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिमुलेशन करना होगा। तो वो हम सिमुलेशन वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है बाई वैरिंग करंट एंड वोल्टेज, ठीक है? जैसे जैसे हम करंट एंड वोल्टेज मेजर करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी होगा, वहां पे हम देखेंगे जब सिमुलेशन में देखेंगे। यहाँ पे भी हम कैसे कह पा रहे हैं, यहाँ पे तो आपको रिलेशन पता है डायरेक्टली यू नो द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, बट यहाँ पे हमने कोई रिलेशन आपको नहीं बताया है। बट जब हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे वी कैन फाउंड कि जो आईवी का रिलेशन होता है दैट इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल रिलेशन। So I is related to exponential to voltage applied across diode. So वहां से आपको पता चलेगा। यहाँ पे कैसे नॉन लीनियर है that we can see in our simulation part. तो एक बार सिमुलेशन में हम जाते हैं, वहां पे इजिली आप से ये देख सकते हो। क्लियर है? मतलब Yes, आपको डायरेक्टली फिगर से यू कैन नॉट डिस्क्राइब कोई भी कंपोनेंट जब तक आपको मैथमेटिकल रिलेशन नहीं पता होता है। रेजिस्टेंस के केस में तो आपको इजीली, मतलब आप जानते हो कि V इक्वल्स टू IR होता है। सो इट इज ऑब्वियसली, मतलब कंक्लूसिव है कि आपको जो रिलेशन है वो लीनियर है। बट डायोड के केस में आपको रिलेशन अभी नहीं पता। सो वी विल सी इन आवर मेन लेक्चर्स जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनके बीच का रिलेशन। बट यहाँ पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिमुलेट द रिलेशन। सो सिमुलेशन पार्ट में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर में तीन तरह का प्रोसीजर गिवन है, 3 और 4 आई थिंक, 1 2 3 एंड 4, यस 4। तो चार कैसे हैं, एक तो आपका सिंपल है, सिंपल रेजिस्टेंस अगर गिवन है
तो उसमें ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। थर्ड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। एंड लास्ट वन इज नॉन ओमिक डिवाइसेस में ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल है। नाउ यू कैन सी जो हमने पहले जितने भी फिगर डिस्कस किए हैं वो सारे फिगर पे ही हमारा यहाँ पे सिमुलेशन है, ठीक है। सो कैसे करना है, इट इज ऑलरेडी रिटन हियर। लेट अस गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ कंफर्मिंग ओम्स लॉ। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपका सिंपल सर्किट बेस्ड है, in which set DC voltage between 0 to 30 volt। So एक DC वोल्टेज अप्लाइड है जो सोर्स हमारा है VDC, उसका वोल्टेज हमें पहले सेट करना है between 0 to 30 volt as per instruction। Set the resistance value between 1 kilo ohm to 100 kilo ohm। अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू एक सेट करनी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू सेट करेंगे हम 1 to 100 ओम के बीच में एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। नाउ वोल्ट मीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू रेजिस्टर। सो पैरेलल टू रेजिस्टर यू कैन सी वोल्ट मीटर आपका गिवन है एंड अमीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टर। तो अमीटर क्या है आपका रेजिस्टर के सीरीज में लगाया हुआ है। उसके बाद नाउ नोट दी वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग फॉर डीसी वोल्टेज। सो जो हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है बिटवीन 0 to 30 वोल्ट, अकॉर्डिंग टू दैट वोल्टेज यू हैव टू मेजर दिस वोल्टमीटर रीडिंग्स एंड जो अमीटर रीडिंग आपके पास अवेलेबल है। सो इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद इंक्रीज द डीसी वोल्टेज। हमें क्या करना है, डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करना है बाय फैक्टर ऑफ 2 एंड नोट वोल्टमीटर एंड अमीटर रीडिंग्स। उसके बाद वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग को नोट करना है एंड कीप रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये स्पेसिफाई क्यों कर रहा है कीप रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट, बिकॉज वी नो R इक्वल्स टू V by I और यू कैन से V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करो Y इक्वल्स टू MX से। Y इक्वल्स टू MX क्या है, लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें M इज अ स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। अब यहाँ पे V इक्वल्स टू IR और Y इक्वल्स टू MX में अगर आप कंपेयर करो तो Y और X आपके वेरिएबल्स हैं और M कांस्टेंट वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर कांस्टेंट लाइन जिसका स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ पे V और I वेरिएबल है, R इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर R जो कि आपका स्लोप है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो आपकी लाइन होगी वो एक लीनियर होगी, ठीक है। सो लीनियर लाइन के लिए क्या होना चाहिए, जो स्लोप है दैट मस्ट बी कांस्टेंट वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, बट यू हैव टू वेरी दिस डीसी वोल्टेज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो 2 फैक्टर से आपको बार बार इसको वो करना है और उसके बाद जब आप रीडिंग ले लोगे देन यू हैव टू प्लॉट VI ग्राफ टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो VI ग्राफ को आपको वेरीफाई करना है ओम्स लॉ के। उसके बाद 2 to 6 फॉर अनदर सेट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू। अब दूसरे रेजिस्टेंस वैल्यू पे अगर आपको चेक करना है ओम्स लॉ, सो 2 से 6 की जो प्रोसीजर है यू हैव टू रिपीट इट। सो V वर्सेस I ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब जो आपका ग्राफ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। Therefore, from the graph, we see that the resistance do adhere to Ohm's law. Thus, resistance is said to be an ohmic device. So, ये आपका सिंपल वाले पे है। वैसे ही आपका सेम इंस्ट्रक्शन यू कैन सी ऑल्सो इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है तो ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू एक पर्टिकुलरली इनिशियली सेट करना है, ऐसा नहीं कि बार बार आप चेंज करोगे। तो सपोज R1 की वैल्यू आपने कुछ रखी 1 किलो ओम और 2 किलो ओम और यहाँ पे 3 किलो ओम कुछ रख दिया वैल्यू। अब आपको क्या करना है कि डीसी वोल्टेज वैरी कराना है और इनके बीच का इनका जो रीडिंग है उसको नोट डाउन करना है। फिर बार बार आपको डीसी वोल्टेज वैरी कराना है, नोट डाउन करना है एंड आफ्टर दैट सपोज 10 पॉइंट आपने मेजर कर लिए, उसके बाद आपको प्लॉट करना है।
तो सेम इंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे आपको फॉलो करना है और प्लॉट करना है। वैसे ही सेम इंस्ट्रक्शन आपको पैरेलल में भी करना है। पैरेलल में क्या करना है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फिक्स करनी है, डीसी वोल्टेज वैल्यू वेरी करना है और रीडिंग नोट करना है। ठीक है, सेट डीसी वोल्टेज बिटवीन 0 to 30, here resistances are kept in parallel, set the resistance value, set the resistance value R2 और वोल्टमीटर ये दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। सो इसका रीजन भी क्या है कि हमें लीनियरिटी चेक करनी है। तो लीनियरिटी चेक कर कैसे करोगे आप, जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को फिक्स करोगे। तो इनिशियली आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू एक रखनी है और वो फिक्स रहेगा एंड यू हैव टू चेंज द डीसी वोल्टेज। सो जैसे जैसे आप डीसी वोल्टेज चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग में चेंजेस आएंगे, उसको नोट डाउन करोगे और उसी को आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहले ये एक बार हम ट्राई करते हैं, उसके बाद नॉन ओमिक पे जाते हैं। तो फर्स्ट आई एम ओनली डूइंग फर्स्ट पार्ट, या कोई भी एक आप बता दो कि इसमें से कौन सा करना है मुझे, मैं उसके अकॉर्डिंग कर लूंगा। नहीं तो आप कहोगे कि सिंपल वाला सर ने कर दिया। कोई भी एक बताओ कौन सा करूं मैं। सर कौन सा? लास्ट लास्ट वाला, पैरेलल वाला। पैरेलल वाला फिर से कंफर्म करो। सीरीज पैरेलल सिंपल कौन सा करना है बताओ। एक करूंगा, दो आपको करना है। लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे जब ये लीनियर वाला हो जाएगा, ओम्स लॉ हो जाएगा। नॉन ओमिक कंडीशन के लिए उसको डिस्कस करेंगे। सर पैरेलल वाला ही कर। ओके ठीक है, सो पैरेलल वाले में हम स्विच करते हैं। सो आपको सिमुलेशन सेक्शन में जाना है। इन सिमुलेशन सेक्शन यू विल सी डिफरेंट आइकन्स। पहला है ओम्स लॉ, फिर ओम्स लॉ ड्रॉ सर्किट। ये सिंपल ओम्स लॉ में आपको कैसे वर्क करना है और सर्किट ड्रॉ करके कैसे करना है, मींस यहाँ पे कनेक्शन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग करना है। देन सीरीज, उसके बाद ड्रॉ सर्किट, देन पैरेलल एंड ड्रॉ सर्किट। सो मैं ड्रॉ सर्किट वाला कर लेता हूँ, आई थिंक ये तो आपका हो ही जाएगा। ड्रॉ सर्किट वाला आपको समझ में आ जाएगा तो नाउ सी, हमने क्या डिस्कस किया था कि पैरेलल ओम्स लॉ में अगर आपको ओम्स लॉ फॉलो कराना है दैट मींस यू हैव टू कीप द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस एज कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट वैल्यू पहले चूज करनी है। तो यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर्स दिए हैं। कंट्रोल पैरामीटर्स मींस कि इनकी वैल्यू को आप वेरी कर सकते हो। तो सपोज हमने रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू एक ले ली, ठीक है, 440 ओम्स, और रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू ले ली हमने 30 ओम्स। ठीक है, अब कनेक्शन हमें करना है। तो कनेक्शन के लिए कैसे कैसे होगा, हमें ये पता है कि ये वोल्ट मीटर है क्योंकि यहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ है। तो वोल्ट मीटर होता है पैरेलल टू द इक्विपमेंट। तो यहाँ से क्लिक करके उठाना है और इससे कनेक्ट कर देना है 10 से। यहाँ से 8 वाले कनेक्शन को उठाना है और 11 पे कनेक्ट कर देना है। अब ये सारे पैरेलल में है तो ऑब्वियसली इसका कनेक्शन यहाँ से होगा, देन इसका कनेक्शन यहाँ से होगा। ठीक है, ये आपका मीटर है तो ये पैरेलल में है यहाँ पे, ये इसके सीरीज में होगा। ठीक है, और यहाँ से जो वायर निकलेगा वो यहाँ पे आएगा। नाउ आपको ग्राउंड भी कनेक्ट करना है तो यहाँ से आपने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए।
तो जब सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कनेक्शन। तो यहाँ पे एक गिवन है चेक कनेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही आप चेक कनेक्शन पे करोगे तो लिखा है राइट कनेक्शन, मीन्स आपने जितने भी कनेक्शन किए हैं वो सारे राइटली कनेक्टेड है। सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज, सो साथ में इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आपको करना क्या है। तो इनिशियली यू हैव टू सेट रेजिस्टेंस वैल्यू एंड इनपुट डीसी वोल्टेज। सो रेजिस्टेंस वैल्यू तो हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब हमें क्या करना है, डीसी वोल्टेज सेट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके 0 वोल्ट से, ठीक है। तो जैसे ही 1 वोल्ट किया आपका रीडिंग आया, यहाँ पे देख रहे हो आप, जितना वोल्टेज आपने डीसी में यहाँ पे दिया था वही वोल्टेज यहाँ वोल्टमीटर में भी मेजर हो रहा है। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ले रहा है, ये जो एमीटर आपका अप्लाइड है। क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को नोट डाउन करना है। तो नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे ऐड टू टेबल का ऑप्शन गिवन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में आपका ऑप्शन लिखा हुआ आएगा सीरियल नंबर 1, मीन्स फर्स्ट रीडिंग वोल्टेज जो अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो 1 वोल्ट है एंड करंट इज 2.35, ठीक है। तो ये करंट और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। देन आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को मेजर करना है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। आपको डीसी वोल्टेज वेरी करना है। तो अगेन वी हैव टू वेरी दिस डीसी वोल्टेज। अब डीसी वोल्टेज आपने बढ़ाया, जैसे ही आप बढ़ाओगे 3 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट सेम अप्लाइड है आपका डी रेजिस्टर के अक्रॉस। करंट की वैल्यू आई 7.05। अब इस वैल्यू को आपको ऐड करना है टेबल में, तो ऐड टेबल पे क्लिक कर दिया। फिर आपको डीसी वैल्यू बढ़ाया, डीसी वैल्यू बढ़ाने पे चेक कर लो आप, वीडीसी वैल्यू सेम है जो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज है। करंट वैल्यू चेंज हो गई, ऐड टू टेबल। देन अगेन मेजर किया, 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट यहाँ पे भी सेम है, करंट वैल्यू चेंज है, ऐड टू टेबल। नाउ अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को डीसी की वैल्यू चेंज करते हुए आप ऐड टू टेबल करते जाओ। जैसे जैसे आप ऐड टू टेबल करोगे यू विल सी कि जो आपका टेबल का स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे डीसी वोल्टेज पे क्लिक किया और आपका वेरी नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ डीसी वोल्टेज, और फिर भी आपने ऐड टू टेबल किया, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि चेंज द डीसी वोल्टेज। तो बस आपको यहाँ पे जैसे ही पता चले कि चेंज द डीसी वोल्टेज, दैट मींस कि आपने वेरी नहीं किया है, प्रीवियस वाला ही आप लेना चाह रहे हो। तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, ऐड टू टेबल करो। नाउ यू हैव ऑलरेडी 10 पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना कर लिया हमने, आई थिंक 13 पॉइंट्स। 13 पॉइंट्स करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे प्लॉट का ऑप्शन गिवन है, प्लॉट पे क्लिक करोगे, ये आपका नीचे वीआई प्लॉट आ गया। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कहीं भी डाउट? नो सर। सर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, इसको चेंज करते रहना है। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जो ये आपका V और I के बीच में रिलेशन है, वो उसका स्लोप को आप चेंज कर रहे हो। तो अगर आप स्लोप चेंज करोगे तो यू कैन इमेजिन कि जो वैल्यूज होंगी वो रैंडम होंगी, कभी ऊपर आ सकता है, कभी नीचे आ सकता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो स्लोप तो चेंज होगा, तो अकॉर्डिंगली मतलब यू विल नॉट गेट स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या करना है कि हमें स्लोप तो कांस्टेंट रखना है ना। जब स्लोप कांस्टेंट रखते हो तभी तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो स्लोप कांस्टेंट मींस कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है आपको।
किसी भी इंस्टेंट में, और वोल्टेज आप चेंज करते जा रहे हो अकॉर्डिंगली आपका करंट चेंज हो रहा है। तो जितने प्रोपोर्शन में वोल्टेज चेंज होगा उतने ही प्रोपोर्शन में करंट चेंज होगा, तभी आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप सबसे पहले पहला वाला ट्राई करोगे। सबसे पहले ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले सेट करो और डीसी की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। अब यहाँ पे केयरफुली आपको क्या सेट करना है, जैसे कि डीसी की वैल्यू जब आप चेंज कर रहे हो तो वो आप स्टार्टिंग से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करना, रैंडम मत करना। रैंडम करोगे तो होगा क्या कि इस लीनियर में तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब आप नॉन लीनियर वाले में जाओगे तो हाँ इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा कि ये क्या करता है कि जैसे जैसे रीडिंग आपकी गिवन होती है सीरीज वाइज, वैसे वैसे वो प्लॉट करता है। तो सपोज किसी पॉइंट पे आपने वोल्टेज बढ़ा दिया और अगले पॉइंट पे वोल्टेज घटा दिया, तो जब वैल्यूज उसकी रैंडम होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्केच होगा वो भी रैंडम हो जाएगा। तो वो हम नॉन लीनियर पोर्शन में देखेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले सेट करो, देन वैरी द डीसी वोल्ट फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद ऐड टू टेबल करो, प्लॉट करो, रिजल्ट वेरीफाई करो, करके देखो। जिनका हो गया वो ड्रॉ सर्किट वाला ट्राई करें।
ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंसेस इन सीरीज वाला करो ट्राई एक बार, जिनका ओम्स लॉ सिंपल हो गया और ड्रॉ सर्किट हो गया, they can try Ohm's law resistances in series and draw circuit both. Okay, now see the last one. लास्ट वन हमारा क्या है, वो नॉन ओमिक डिवाइस पे कैसे वर्क करना है वो एक्सप्लेन किया है. सो लेट अस गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ कंफर्मिंग नॉन ओमिक डिवाइस. सो फर्स्ट इज सेट डीसी वोल्टेज टू 5 वोल्ट. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है सर्किट का. सो इन दैट अरेंजमेंट आपको डीसी वोल्टेज फर्स्ट यू हैव टू सेट एज 5 वोल्ट. 5 वोल्ट डीसी वोल्ट सेट करने के बाद यूज द रेजिस्टर ऑफ 100 किलो ओम एंड अ डायोड. सो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 100 किलो ओम मैंने सपोज लिया और एक डायोड इन द सीरीज कनेक्शन विथ रेजिस्टेंस प्लेस किया. नाउ वोल्टमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू सिलिकॉन डायोड. वोल्टमीटर हमें वोल्टेज मेजर करना है अक्रॉस डायोड, सो हमें इसके पैरेलल लगाना है. और अमीटर सीरीज विथ रेजिस्टर. ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टर है उसके सीरीज में हमें अमीटर प्लेस करना है. नाउ नोट द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग फॉर डीसी वोल्टेज वैल्यू 5 वोल्ट. सो इस मोमेंट पे क्योंकि हमने डीसी वोल्टेज दे रखा है एंड रेजिस्टेंस वैल्यू अपने पहले से दे रखा है, तो इस मोमेंट पे आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू मेजर करना है क्योंकि करंट आपका फ्लो करेगा थ्रू डायोड. आफ्टर द मेजरमेंट you have to decrease the value of resistance as 75k, 51k, 24k, 10k ohms
and take the readings and note voltmeter reading across silicon diode and ammeter reading. So previous cases में और इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंस आपका ये है कि प्रीवियस केसेस में हम क्या करते थे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट रखते थे और डीसी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज और Vary डिक्रीज करते थे, ठीक है, वेरी करते थे। बट इस केस में हमारा क्या है, डीसी वोल्टेज हमने फिक्स किया है और रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रहा है। सो अगर हमारा जो कंपोनेंट है अगर वो लीनियर होता तो क्या होता, ये वैल्यू आपका चेंज होता और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो नॉन लीनियर चेक करने के लिए हमने क्या किया, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर रहा है तो वोल्ट मीटर और जो आपका अमीटर है उसके थ्रू जो रीडिंग है उसको नोट डाउन कर रहे हैं और नोट डाउन करने के बाद हम वीआई के ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। वीआई ग्राफ कौन सा, वोल्टेज अक्रॉस डायोड और करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। जब इनकी वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे देन यू मे फाइंड कि ये नॉन लीनियर है। सो द चेंज इज नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल। इस केस में क्या होगा, जो चेंज होगा वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा and V versus I graph is not a straight line. Therefore, from the graph, we see that the diode doesn't adhere to Ohm's law. Thus, diode is said to be non-ohmic device. So, ये same experiment हम perform करते हैं in our simulation. So, मैं just draw circuit पे जाता हूँ, आप ओरिजिनल वाला कर ही लोगे। पैरेलल है, इसमें ड्रॉ सर्किट दिया ही नहीं है, इसमें जस्ट वेरीफाई करने का दिया है, ठीक है। सो वेरीफाई करने में हमें सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू सेट द डीसी वोल्टेज, ठीक है, 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज सेट किया। आफ्टर दैट हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट की। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट की उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रीडिंग आएगी। सबसे पहले 100 के तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कराने पे हमारे पास वोल्ट मीटर के अक्रॉस रीडिंग और अमीटर के अक्रॉस रीडिंग आ रही है। तो उसको आप ऐड टू टेबल कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करो, ऐड टू टेबल, इंक्रीज करो, ऐड टू टेबल। ठीक है, सो मैंने बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू 15 रीडिंग्स ले लिए। अब रीडिंग लेने के बाद मुझे प्लॉट करना है। सो देखो ये लीनियर नहीं है, ठीक है। अगर आपको और रीडिंग लेनी है देन यू कैन ऑल्सो ऐड सम रीडिंग्स। अब देखो जो मैं बात कर रहा था उस समय कि जब आप नॉन लीनियर में लेते हो तो इसका ट्रेस कैसे हो रहा है वो आप देखो। मैंने पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीडिंग ली, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, अपना कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा था। तो ये सीरीज में जैसे जैसे पॉइंट्स आपने दिए थे इस टेबल में वैसे वैसे ये प्लॉट करता जा रहा था पॉइंट्स को इन योर प्लॉट पेपर। तो प्लॉट किया, प्लॉट किया, प्लॉट किया, फिर मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की, रेजिस्टेंस की वैल्यू पीछे लेनी शुरू की, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां से ये फिर से वापस आया और फिर प्लॉट किया। बात समझ में आई आपको? अगर यही चीज आप क्या करते, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते तो ये आपका नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्लियर करते हैं।
क्लियर हो गया एक्सपेरिमेंट टेबल। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वोल्टेज डीसी वैल्यू में सेट करना है, पहले हमने सेट कर दिया। हमारे पास रीडिंग है अमीटर और वोल्टमीटर की। ऐड टू टेबल, देन रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, ऐड टू टेबल, अगेन इंक्रीज, ऐड टू टेबल। ठीक है, तो आई थिंक मैंने काफी रीडिंग्स ले ली। नाउ वी हैव इनफ रीडिंग्स। तो ठीक है, कितनी रीडिंग हो गई हमारे पास? 15 रीडिंग। ठीक है, नाउ प्लॉट। देखो कहीं पे भी रिट्रेस नहीं हुआ। ठीक है, जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया वैसे वैसे पॉइंट्स हमारे पास मिलते गए। सो क्लियर है सबको? एनी डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? केवल एक स्टूडेंट की आवाज आई। Yes, sir. यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस ठीक है, Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो अब हमारे पास क्या है? ये एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव टू मूव टू आवर क्विज सेक्शन। ठीक है, अब आपके पास क्विज है। क्विज को आपको चेक करना है। सो ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ कन्हैया सर है, ही विल असिस्ट यू। ठीक है, सो यू हैव आई थिंक 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस है, विद इन 5 मिनट्स आप कर ले जाओगे सारे, आई एम श्योर। ठीक है,
any answer? Hello? Taking question. Current resistor is labeled without following rating 150 ampere or 15 millivolts. This is the resistance ohms and in ohm. Am I audible? Yes, sir. And any answer? First question का आंसर नहीं है? Yes, sir. D. 7. D. Yes, sir. Second. Second का आंसर. Hello. If doubling is the voltage across the resistor, double the resistor current through in the resistor. Second.
Subhadeep Neti, Akash, right? If you are the voltage across the relay resistor is the increased back time, what that is the current do? So, if दिखता दिखता हेलो लास्ट तक है universally improper Yes, resistance sir. of Inversely proportional. सेवेंथ में क्या होगा? ये होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। कंप्लीट हो गया इसका मतलब। सबमिट करके क्रॉस चेक कर लो इसको। सेवंथ राइट है, 6 आपका राइट है, 6 आपका राइट है, V = I, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। डिड नॉट टू वेरी टू दिस चेंज 33 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, ओके, सबमिट हो गया, क्लियर हो गया। क्यों सबमिट हो गई आपकी? इनमें देखो, इनमें है क्या डाउट? हम सीरीज वाला जो सर्किट बताया था ना सर ने। हेलो हेलो, यस सर। सीरीज कॉम्बिनेशन सर ने ओम्स लॉ के लिए सीरीज सर्किट बनाया था ना सर ने। वो सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट ड्रॉ करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। L1 L3 से L3 L7 से L4 L10 से, ये जो सीरीज दिया हुआ है ना कॉम्बिनेशन आपका फर्स्ट पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद सम जो टॉपिक्स है आपके, ये सर्किट ड्रॉ करने के बाद क्रॉस चेक करना है सर्किट को यहाँ से। उसके बाद में अपने को क्या करना है कि ये रेजिस्टेंस, दोनों रजिस्टर की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद डीसी जो सोर्स है, डीसी वोल्टेज, इसको इंक्रीज करके अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो सेटअप करेंगे यहाँ से, उसकी रीडिंग ऐड करेंगे यहाँ से, एज वेल एज जैसे कि सर ने बताया अभी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे कनेक्ट करेंगे। सीरीज के लिए कनेक्ट करेंगे ऐसे, इसको एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे ऐसे, 6 पॉइंट को 9 से, 9 को ग्राउंड से। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर रजिस्टर के, दोनों रजिस्टर के पैरेलल में लगेगा। ये कितना लगेगा, यहाँ पर लगेगा। अब सर्किट चेक करने के लिए कनेक्शन चेक करेंगे यहाँ से, कह रहा है राइट कनेक्शन सेट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से कुछ एनी1 रजिस्टर्स की वैल्यू सेट करेंगे। कौन सा रजिस्टर है? R1, ये R2 की वैल्यू सेट करेंगे। उसके बाद ये वोल्टेज वैल्यू सेट करेंगे यहाँ से। वोल्टेज वैल्यू सेट करने के बाद
ये मीटर्स में कुछ रीडिंग शो हो रहा है, एम्पियर में, एम्पियर मीटर में शो हो रहा है। उसके बाद ऐड टेबल करेंगे यहाँ पे, तो ये रीडिंग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से माइनस चेंज करेंगे, अब ऐड करेंगे, नेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर ऐड करेंगे। जैसे जैसे ऐड टेबल करते जाओगे आपकी रीडिंग यहाँ आती रहेगी। तो ये फुल्ली आपकी रीडिंग लेनी है यहाँ, 10 से 15 रीडिंग लेनी है हर एक्सपेरिमेंट में लगभग लगभग। ये आपकी रीडिंग इंक्रीज होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी यहाँ पे। ओके, ये हो जाएगा। टोटल रीडिंग होने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे इसमें। ये आ गया, लीनियर ग्राफ आ गया आपका, शो हो रहा है लीनियर ग्राफ। हेलो। यस सर। हाँ, तो ऐसे सारे जो है आपके पी एन डायोड इसके पूरे कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद जो आपका गूगल क्लासरूम है उसमें कुछ अपलोड। एक आप खुद ये वाला प्रैक्टिस कर ली थी आपने, ये वाला सिंपल ओम्स लॉ। सिंपल ओम्स लॉ में है वही, आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे। उसके अकॉर्डिंग 1 टर्मिनल को 3 से मिलाना है, और 4 को 5 से, 6 को 9 से, 9 को 12 से, 7 को 2 से, और 8 को 4 से। क्रॉस चेक करना है, कनेक्शन चेक करना है, आपका राइट कनेक्शन है। उसके बाद रजिस्टर की वैल्यू पुट करनी है। ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ानी है, ऐड टेबल करना है। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप रीडिंग बढ़ाते जाना है और रीडिंग ऐड करते जाना है। यहाँ पे ये आपके वही है, 10 से 15 रीडिंग लेनी है, नीचे की प्रॉपर ग्राफ शो हो जाए अपने को। फिफ्टी रीडिंग हो गई, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना होगा। ये ग्राफ प्लॉट होगा।
सर क्लास हो गया क्या सर? हाँ क्लास हो गया, क्विज सबमिशन होने के बाद क्लास और हो गया। आगे भी क्लास है क्या? एक क्लास और सो आई होप आपका एक्सपेरिमेंट हो गया है, आई थिंक। कन्हैया सर सर, हो गया। यस सर। हाँ ठीक सर है। हो गया। सो अटेंडेंस आपका कन्हैया सर आपने ले लिया है ना सारा अटेंडेंस? हाँ ले लिया, आज दोनों ग्रुप के हैं सर, A1 के दोनों भी ग्रुप है, से A2 के भी। हाँ कुछ A1 के भी बच्चे, गलती कुछ से बच्चे A2 के। गलती से आ गए होंगे, उनको पता नहीं होगा। सो अटेंडेंस आपका हो गया है, ठीक है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, जो जब भी है, ठीक है। सो यू कैन डू नो। लैब में एक्चुअली हम लोग अटेंडेंस ऐसे ही ले लेते हैं, उसका कोई गूगल फॉर्म से नहीं लेते हैं, ठीक है। सो अटेंडेंस आपकी ले ली गई है, डोंट वरी।